Firstly, if I ask you that which is better, a joint family or a nuclear family, then every person will have different thoughts about it, cause there are different type of people in this world and they have different thinking. So hello friends, a very good morning to all. Today here I am going to deliver a speech on joint family versus nuclear family. There are more pupils in the joint family than there is love and affection for each other. In a joint family, if the child is scolded by his parents, then his grandmother calms him down, and if is scolded by his grandmother, so his grandfather calms him down. But in a nuclear family, if the child is scolded by his parents, then he has no one to calm him down. If there are brothers and sisters, but they go to the parent side. If in a joint family, if mother and father job of the child, then the ones who take care of the child are his grandparents. But in a nuclear family, child's parent job, then there is no one to take care of the child. He cannot get as many good values as the child from his joint family would get. In a nuclear family, if the child cries, he is given a mobile phone so that he doesn't cry, but this effect on the child both physically and mentally. In spite of it, as we all know that earlier our society was not so educated, but as the society is becoming educated, every person wants to be self-dependent. In a joint family, if one person earns money and the rest are dependent on someone else, and and in a nuclear family, husband and wife both earns money and no one depends on someone, and no one wants to listen anything. If the husband says something to his wife, she doesn't want to listen anything cause he is self dependent, and the wife says something to his husband, he will not say want to listen something. uh, and sometimes it also becomes the reason of divorce. And I like joint family because there are more peoples in the joint family. We can share our feelings and we lives with our family members fun loving. And in the last, I want to only say that whether family is small or big, there are there should be freedom, there should be love for each other in the family, and there should be no pressure on anyone. And thank you everyone. समझ में आ गया हिंदी में? हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है वो। कुल मिला के इतना सा है, जॉइंट फैमिली अच्छी है या न्यूक्लियर फैमिली? वो होती है मम्मी पापा बच्चे। तो आज ये कई सारे लोग प्रीफर करते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए अटेंशन ये, कई सारी गर्ल्स शादी के बाद अलग कर दो में बंटवारों उस वाली फीलिंग्स को लेके आती है, और एक अच्छे खासे परिवार को बेटा अलग कर दिया जाता है। जिस परिवार में 2 3 4 भाई बहन जो भी थे सब एक साथ मिलजुल के रह रहे थे मम्मी पापा के साथ, एक की शादी होते हुए घर में भारत पाकिस्तान वाली फीलिंग आने लगती है। तो ये तुम्हें आज अच्छा लग सकता है बेटा कि काम कम करना पड़ेगा, केवल हस्बैंड के लिए खाना बनाया और पैर पटका के सो गए पूरे दिन रील्स देखे, घर का काम खत्म। आज तो आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन बेटा वो परिवार जरूरी है। जब समस्याएं आती है, कुल मिला के खुशी क्या होती है? मैं कह रहा हूं मेरे पास बहुत सारे पैसे हों, लेकिन उनको अपनी खुशी को जब तक किसी के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा तब तक मजा ही नहीं आएगा। असली मजा परिवार में आता है। हाँ, कुछ फैमिलीज होती हैं जो आपस में द्वेष रखती है, वहां अलग होना फिर वो बात अलग होती है, लेकिन कोशिश की जाए जब तक फैमिली आपकी बेटर है, अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी मोटी खटपट तो हर फैमिली में बेटा होती रहती है, ठीक है कि नहीं? और इसमें थोड़ा ऐसा भी होता है कि दादाजी भी डांट देते हैं, चाचू डांट देते हैं, ताऊ डांट देते हैं, बट बेटा उससे प्रॉफिट है। जब तक आपका परिवार एकजुट रहेगा, बाहर के कुत्ते नहीं आपको खाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। आप में एक अलग प्रकार की पावर रहेगी। आपके आपसी मतभेद कितने भी अंदर उठ रहे हैं, छोटी मोटी बातें हर घर में, बर्तन है तो खटकेंगे,
लेकिन याद रखो, एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ कहा जाता है। मैंने आपको पहले एक स्टोरी सुनाई होगी छोटी सी कि एक गांव में 4 भैया थे, तो आपस में थोड़े मतभेद हो गए, चारों अलग अलग मतलब बोलचाल बंद। उसी गांव में एक और आदमी था थोड़ा दबंग टाइप का, वो गांव के बाहर कोने पे रहता। अब एक भैया वहां से निकल रहा तो उससे उसने गाड़ी लेके बात करी, माने कि भाई साहब गाड़ी क्या दे रहे हो, कि ऐसी देंगे तू क्या कर रहे हो, मतलब बहस हो गई। बहस हो गई, उसने वो भैया बहुत मारा उनका। वो घर जाके कहता है तीनों से कि वो बिन्ने को मारो है, माने हमें क्या करना, तो मारो है तो हमसे को बोलचा ना, हमें को मतलब ना, तू मारो खुद जाके, हमें को मतलब ना। कुछ दिनों बाद पता चला एक और भैया था, उससे उलझ गया, बाने दूसरा भैया मारो। धीमे धीमे करके चारों बाने कूट गए। जब चारों कुट गए तब बैठे के यार चारों कुट गए, अब तो चारों की है क्या हो, के चले के चलो फिर वो इतना कूटा कि दोबारा से उनकी तरफ, उस घर की तरफ देख के भी नहीं निकलता वो। अगर ये यूनिटी बेटा पहले ही होती तो शायद उसकी हिम्मत नहीं होती कि बोल जाए। होता है कि नहीं, जैसे हम 4 भाई हैं, अब चारों भैया एक जैसे तो नहीं होंगे, किसी की किसी चीज में छाप अच्छी होगी, किसी की किसी चीज में, किसी का व्यवहारिक रूप से अच्छा है, कोई टीचिंग के हिसाब से अपना इज्जत सम्मान पा रहा है चारों तरफ, किसी का बड़े बुजुर्गों में अच्छा व्यवहार है, किसी का गुंडे छड़ेरे लुट्टो जब जितने हैं बिन में अच्छा व्यवहार है, क्योंकि सब टाइप के होने चाहिए। तो उससे प्रॉफिट क्या मिलता है, कहीं कोई भी बात पढ़ने पे किसी न किसी का व्यवहार निकल जाता है, बात सॉल्व, टेंशन होती नहीं है। तो परिवार जब होता है वो बेटर है। आपने नोटिस किया होगा, स्पेशली न्यूक्लियर फैमिली 98% फौजी परिवार की हो रही हैं। जिसके हस्बैंड आर्मी में, जिनका बेटा आर्मी में, वो अलग होना ही होना है। लड़की को ये लगता है मैं 15 लाख दे के हमारे पिताजी ने ब्याह करो है तो हमें अपने हिसाब से चलाएंगे घर, और वो अपने माँ बाप से उस लड़के को बहुत जल्दी दूर कर देते बेटा, जो बड़ी दुख की बात है। मम्मी पापा ने बड़ी मेहनत से बेटा, बड़ी मेहनत करी, उससे अच्छी नौकरी मिल जाए, भाई लाइफ सफल हो, और वो लड़की क्या कर गई, छोटा सा एक बच्चा हुआ नहीं, चलना नहीं सीखा के बाजार में पढ़ाएंगे, वो आ गई मम्मी पापा छोड़े, वे परेशान है, भाड़ में जाओ, रट्टा रबाट कैसे भी करके अलग रह रही है वो। और आधी से ज्यादा फौजियों के बेटे, बुरा नहीं माने कोई, जिनके मम्मी पापा या चाचा ताऊ या दादा दादी घर पे कोई देखने वाला नहीं है, अलग हो चुके हैं। तुमने नोटिस किया होगा, लड़का हो चाहे लड़की बिगड़ रहे हैं, क्योंकि चाचा ताऊ से सुन ही नहीं रहे, पहले ही बोल चुके हैं, वो कुछ कह रहे हैं तो मम्मी भड़क जाते हैं, मोड़ा हाथ कैसे लगाया था। उसमें हो क्या रहा है, लड़का या लड़की दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। मम्मी इस बात की खुशी है कि हमारी चैन से कट रही है, जो मन चाहो ला रहे हैं, खरीद रहे हैं, एंजॉय शॉपिंग चल रही है, जैसे चाहो वैसे रह रहे हैं, उनको प्रॉफिट लग रहा है, लेकिन भविष्य के लिए अपने लिए वो गड्ढा खोद रहे हैं। आज वो लड़का या लड़की किसी की नहीं सुनेगी, कल तुम्हें समस्या में आओगे। और अगर वो न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली में होते तो बच्चे को डर रहता कि पापा भलू नौकरी पे, चाचा ने देख ले वहीं कूट देंगे, तो वो बच्चा थोड़ा सा सदके रहता बेटा। तो याद रखो, ज्वाइंट फैमिली के बहुत फायदे हैं, और हर किसी की नहीं कह रहा, सब एक जैसे नहीं है, बट बता रहा हूँ। बाकी जो बच गए मरने को बोल लेना बेटा, ठीक है।